બરાબર. નમસ્કાર, વેબિનારમાં જોડાનાર દરેકનું સ્વાગત છે. આજે ગિરનારી મંડળનો 309મો વેબિનાર છે. આજના વક્તા છે ડોક્ટર એમ.જે. કોઠારી સાહેબ, જે બીએસઆઈ પૂનામાં બોટનિસ્ટ તરીકે નિવૃત્ત થયેલ છે. આજે 26 જુલાઈ છે એ વિશ્વ મેંગ્રુવ દિવસ તરીકે ઉજવાય છે. એટલે આજનું વક્તવ્ય પશ્ચિમ ભારતના મેંગ્રુવ ઉપર રાખેલ છે. મેંગ્રુવ એટલે મડ લવિંગ પ્લાન્ટ, એટલે કાદવ પ્રિય વનસ્પતિઓ, જે દરિયાકાંઠે કાદવમાં ઉગતી વનસ્પતિઓ એટલે મેંગ્રુવ. કાદવ કીચડ વાળો જ્યાં દરિયાકાંઠો હોય ત્યાં મેંગ્રુવ જોવામાં આવી શકે છે. મેંગ્રુવ એટલે કે વાતસિક વનસ્પતિઓ. તો એનું વક્તવ્ય આપશે ડોક્ટર એમ.જે. કોઠારી સાહેબ, ડોક્ટર મહેશભાઈ કોઠારી સાહેબ, જેમણે બીએસસી બોટની ભાવનગરમાં કોલેજમાં કરેલ છે. એટલે કે ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં હશે અથવા સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી, અત્યારે ભાવનગર યુનિવર્સિટી તરીકે ઓળખાય છે, સર પીપી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સાયન્સ. અને એમને એમએસસી 1968માં સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી વલ્લભ વિદ્યાનગરમાં કરેલ. પછી પીએચડી નું કાર્ય પણ સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટીમાં 1975માં પૂરું કરેલ. આ પછી 1997માં શ્રીલંકામાં કોલંબામાં ઓપન ઇન્ટરનેશનલ યુનિવર્સિટી ફોર કોમ્પ્લિમેન્ટરી મેડિસિન દ્વારા એમને ડીએસસી એટલે કે ડોક્ટર ઓફ સાયન્સની ડિગ્રી એનાયત કરેલ. આ ઉપરાંત એમનું ટેક્સોનોમીમાં અમૂલ્ય પ્રદાન છે. એમણે મેંગ્રુવ ઉપર મોનોગ્રાફિક કાર્ય કરેલ છે. એટલે કે ડોક્ટર મહેશભાઈ કોઠારી સાહેબને મેંગ્રુવ મેન તરીકે પણ ઓળખી શકાય. એમણે કેટલીક નવી સ્પીસીઝ અને કેટલીક નવી વેરાયટીઓ પણ શોધેલ છે. તેમણે શિક્ષણ 4.5 વર્ષ સુધી કાર્ય કરેલ. પછી સંશોધન કાર્ય 31 વર્ષ સુધી કરેલ છે. પીએચડી ના રેફરી અને ગાઈડશીપ પણ એમણે કરેલ છે. અનેક સિમ્પોઝિયા, વર્કશોપ વગેરેમાં એમણે ભાગ લીધેલ છે. કેટલાક પુસ્તકો લખેલ છે, ખાસ કરીને મેંગ્રુવ ગોવા, અને ઘણા બધા સંશોધન પેપર પણ એમના પ્રકાશિત થયેલ છે. તો બહુમુખી બોટનિસ્ટ એવા ડોક્ટર એમ.જે. કોઠારી સાહેબને વિનંતી કે તેઓ પોતાનું વક્તવ્ય હવે શરૂ કરી શકે છે. નમસ્કાર સર. જય ધન્વંતરી. જય ધન્વંતરી. પહેલા તો હું આભાર માની યાદ છે કે 2007માં ડીસી ભટ્ટ સાહેબે મેંગ્રુવ સિમ્પોઝિયમ માટે મને બોલાવેલો. ત્યારે વાઇસ ચાન્સલરની હાજરીમાં કપવાનો પણ લાભ મળેલો. ત્યારે આપ મળેલા ત્યારે મને ભાગતો આપેલું. ત્યાર પછી 309 વેબિનાર કરે, મારું 309 નંબર અને 1000 જેટલા પણ થયા છે. તો મને આવે છે को कर कि खुद बंदे से पूछे रिजा क्या है છે. તો સાહેબ આપનો અવાજ કપાય છે, એટલે કે વિડીયો ઓફ કરી નાખો. વિડીયો ઓફ કરો. હા, મને આવડશે કેવી રીતે? વિડીયો લાલ બટન ની બાજુમાં વિડીયો નો ઓપ્શન. હા, બસ ઓકે, બરાબર છે. હા, કર્યો. બોલો. તો બહુ સારું કામ કર્યું છે આપે, અને એના માટે તમે અભિનંદનને પાત્ર છો. તો પેલા તો મારા ગુરુજીને યાદ કર્યું, પ્રોફેસર જીએલ શાહ, જે રીડર ઇન બોટની હતા સાઉથ આપણે સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટીમાં, અને એના અંડરમાં મેં લગભગ 4 વર્ષ કામ કર્યું. અને એમને 10 પેપર એમના સાથે ફોરેન પબ્લિકેશન પણ થયા. અને પછી બીએસએમાં લાગ્યું. તો ગુરુ આપણે કહીએ છીએ કે ગુરુ અને ગોવિંદ બંને સાથે ઉભા રહે, તો ગુરુને પેલા નમસ્કાર કરવા કે એમને બધા આપણે દિશા સૂચવી. તો એ પેલા એટલે પેલા એમને નમસ્કાર કરું છું. ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુદેવો મહેશ્વર ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. ત્યારબાદ આપણા જે મેંગ્રુવ્સ ઓફ ઇન્ડિયા, એલ કે બેનર્જી, લલિત કુમાર બેનર્જી,
એમણે આખો ભારતના મેંગ્રોવ ઉપર મોટું પુસ્તક લખ્યું છે, જેની સાથે જે પ્રત આપણા મિતલિયા સાહેબ પાસે પણ છે, અને પણ મેં પણ એનો સારો અભ્યાસ કર્યો છે. વૈયક્તિક રીતે પણ મારા એમને પેપર પણ એમને તપાસી આપેલા. મોટો એક ઇન્ટરનેશનલ સેમિનાર હતો ત્યારે એમને BSIના ઉપર જેના એક્સપર્ટ હોય એના પાસે પેપર મોકલીએ, એ પાસ કરે તો તમે સેમિનાર એટેન્ડ કરી શકો. તો બહુ સરસ હતા. કલકત્તા મારી બદલી થયેલી ત્યારે પણ એ બહુ એમના સાથે સંપર્કમાં આવ્યો કે જો આપણે કલકત્તામાં કોઈ પણ સાથે હશે, બહુ હસમુખા હતા ભાઈ. હવે નહીં રહ્યા, ટૂંકી ઉંમરમાં જે જતા રહ્યા. અને ત્યારબાદ એક ડૉક્ટર કાર્તિકેયન, એ પણ અમારા બોટની પશ્ચિમ સર્કલમાં ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર તરીકે હતા. એ પણ ભગવાને બોલાવી લીધા, એમનો પણ સ્વર્ગવાસ થયો. એ પછી એમના પહેલા એમના જ વિદ્યાર્થી ડૉક્ટર લક્ષ્મી નરસિંહન, જેને ફ્લોરા ઓફ મહારાષ્ટ્ર, આ કાર્તિકેયન સાહેબને વિશિષ્ટ વૈજ્ઞાનિક પુરસ્કાર પણ મળેલો, અને ઘણા પુસ્તકો, નવી સ્પીસીસ વગેરે કામ કરેલું. અને આ લક્ષ્મી નરસિંહન એમને પણ ફ્લોરા ઓફ મહારાષ્ટ્રના બીજા વોલ્યુમમાં ઓથર તરીકે કામ કર્યું. એ પણ કોરોનામાં વયા ગયા. અને ત્યારબાદ આપણા જે ડૉક્ટર જાધવ, જે એ પણ જે અમારા ડાયરેક્ટર NP સિંઘ સાહેબ, એમના વિદ્યાર્થી હતા. એ પણ અમને ડેન્ગ્યુ થયેલો, એ તાજેતરમાં જ 15 દિવસ પહેલા જે ગયા. બોટનિસ્ટ હતા, અને ફ્લોરા ઓફ પૂના ડિસ્ટ્રિક્ટ 2 વોલ્યુમમાં લગભગ 3 થી 4,000 સ્પીસીસનું બહુ અમૂલ્ય કામ કર્યું. તો એવા બોટનિસ્ટ પણ એ ન રહ્યા પશ્ચિમ સર્કલમાં. તો આવા ઘણા લોકો ગયા છે, જે બધા તો યાદ નથી, પણ જેટલા યાદ હતા એમને હું મારા તરફથી અને આપણા સૌના તરફથી શ્રદ્ધાંજલિ અર્પિત કરું છું. અને છેલ્લે આપણા કારગિલનો વિજય છે, જે શહીદોએ આપણા દેશ માટે કુરબાની આપી. ઘણા શહીદોએ પોતાને જીવ જોખમમાં મૂકી અને લડ્યા અને પ્રાણ ગુમાવ્યા. એ શહીદોને પણ આપણા વતી, સૌ વતી શ્રદ્ધાંજલિ અર્પિત કરું છું, કે એમના લીધે તો આપણે છીએ. તો એ બધા પછી હવે આપ જો રજા આપો તો મારું જે મને જે થોડી તક આપી એ શરૂઆત કરું. હા સર, શરૂ કરો સાહેબ. હાજી. હા. તો શરૂઆતમાં તો આપણે ભારતના જે પશ્ચિમી તટ પર જે વાયુશીપ, અથવા પેલા એને વાયુશીપ વનસ્પતિ કે છે, તો મેંગ્રુવ્સ, એ પૌધોની વિવિધતા જે ગોવા, ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં મળે છે. તો ખાસ કરીને ગુજરાત અને ગોવાના ઉપર હું વધારે પ્રકાશ દઈશ. તો એ લેખમાં લગભગ 25 વનસ્પતિનો ઉલ્લેખ કરેલો છે. આપણા જે લલિત કુમાર બેનર્જી, LK બેનર્જી, પછી ARK શાસ્ત્રી, અડાલારામ શાસ્ત્રી એનું નામ, અને MP નાયર, જે પેલા ડાયરેક્ટર હતા, જેના સાથે એક નવી સ્પીસીસ કેશિયા કોલામેન્સિસ પ્રસિદ્ધ કરવાનો પણ જ્યારે પૂનામાં હતા ત્યારે મને તક મળેલી. મેં અને મારા સાથે મૂર્તિ કરીને હતા, સિલસિલા મૂર્તિ, રાયગઢ ફ્લોરાનો અમને પ્રોજેક્ટ પ્રસિદ્ધ પણ થઈ ગયું. તો એમાં અમને નવી સ્પીસીસ કેશિયા કોલામેન્સિસ મળી. તો એના સાથે કોઠારી મૂર્તિ નાયર, એમના સાથે કરવાનો મોકો મળેલો. હવે એમના 1989માં એમણે એક કેટલોગ પ્રસાદ કર્યો, એટલે બેનર્જી એટેલ, બેનર્જી, શાસ્ત્રી અને નાયર. એમને 1989માં 1989 ત્યારે એક મેંગ્રુવ્સનો એક કેટલોગ પ્રસિદ્ધ કર્યો. એમાં એમને Excuse me, Dr. Kothari. ભારતમાં Dr. Kothari, just listen to me. ટેલ મી. Your video is off. Why don't you put it on? Your video, your picture is not coming. Yes, now it is okay. Thank you. Our director, botanical India, I am happy that so this will Canada. Just I सर उसका आवाज कट रही है, इसलिए वीडियो ऑफ करने के लिए बोला है सर को. वीडियो सर ऑफ कर दीजिए कोठारी सर. Okay, sir. Okay. हाँ.
Okay, you can उन्होंने continue. Yeah. Thank you. तो थैंक यू सर, તમે आपने भी ये सेमिनार अटेंड वेबिनार अटेंड किया कनेडा से, तो That's fine. ये- You तो can continue. हाँ, तो मैं आभारी हूँ। तो उस दृष्टि से जो वनस्पतियां मिली है वो अभी मैं जो मिस्टर गढ़वी है उनको विनंती करता हूँ कि उन्होंने स्लाइड शुरू करे तो जल्दी, तो शॉर्ट स्वीट हो जाएगा। વિનોદભાઈ સ્લાઇડ ફેરવતા રહેજો. વિનોદભાઈ ખરા. कोठारी साहब बोलिए. जी हाँ जी, आ रहा है, आवाज आ रहा है मेरा? आ रहा है, आ रहा है, आवाज आ रही है. मगर इसमें दिख नहीं रहा है साहब। Yes, yes. हाँ। It is coming. Thank you. थैंक यू। तो पहले तो सारांश मैंने गुजराती में दिया है, वो मैंने जो से बात की, तो अपना किनारा है जो कोस्ट है तो 5700 किलोमीटर लंबा है, करीबन 6740 किलोमीटर पूरा मैंग्रोव एरिया है। उसमें 7% वर्ल्ड का 7% है। तो वो वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट और आइलैंड चेन में विभाजित है और 59 में स्पीसीज मिल रही है। उसमें 34 स्पीसीज है वो ईस्ट कोस्ट से रिपोर्ट हुए हैं। ईस्ट कोस्ट में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार आइलैंड्स और 25 स्पीसीज मैंग्रोव है वो वेस्ट कोस्ट से मिलती है, जिसमें केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। वो बैनर्जी एटल ने 1989 में ये कैटलॉग प्रसिद्ध किया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, तो ये मैंग्रोव ये आई है तो मैं बता देता हूँ। मैं गोवा का उल्लेख है ही, तो ये 2002 में भारतीय संरक्षण BSI, जिसमें के जो अभी साहब मौजूद है वो भी है, NP सिंह साहब, तो मैंग्रोव ऑफ गोवा, और उनके ही कृपा से मैं बताऊं कि उनके ही सजेशन से जब वो डिप्टी डायरेक्टर थे पुणे में, तब प्रोजेक्ट आया मैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट के, और वो 2 साल में गोवा और गुजरात 89-90 में 2 साल में वो पूरा करने का। तो उन्होंने बताया कि कोठारी तुम चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हो, 2 साल में ये प्रोजेक्ट पूरा करोगे? तो उन्होंने बताया और चैलेंज मैंने एक्सेप्ट की। तो मेरे साथ KM राव, के मधुसूदन राव, दोनों ने मिलके 2 ट्रिप गोवा में की और 2 ट्रिप गुजरात में की और पूरा किया। और वो उसका पुस्तक रूप में 2002 में मैंग्रोव ऑफ गोवा प्रसिद्ध हुआ और मैंग्रोव ऑफ गुजरात भी 2001 में बुलेटिन बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वॉल्यूम में प्रसिद्ध हुआ। तो ये मैं आई एम थैंकफुल बिकॉज ऑफ हिज efforts we could succeed and we could prepare that complete our work and publish also that in bulletin botanical survey volume number 43 2001 pages 83 to 150। तो ये सब गूगल पर भी दिया है और मैंने इसमें उल्लेख भी किया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हेलो, बोलिए. हाँ बोलिए सर. हाँ, थोड़ा देखिए, तो मैं स्लाइड से ही शुरुआत करता हूं और साथ साथ में बताता जाऊंगा, ठीक है? तो शॉर्टकट भी हो जाएगा। और मैंग्रोव ऑफ कोई भी मैंग्रोव है वो कलेक्शन भी बड़ा कठिन है, बड़ा खोज ले વિનોદભાઈ ઝૂમ કરજો, ઝૂમ ફોટોગ્રાફ ને ઝૂમ કરજો. हाँ, फोटो ये, हाँ, ये फ्रूटिंग ट्विग ऑफ एविसिनिया मराइना जो जोड़िया बंदर जामनगर से है। तो आपको ताजुब लगेगा ये जोड़िया बंदर ये पिरोटन आइलैंड में है। हम कैसे गए
कि रात को 1 बजे ओड आवर्स में जाना पड़ता है। वहां का जो फॉरेस्टर था वो बोलता था कि यदि आपको यदि कलेक्शन करना है तो रात को 12 बजे निकलना पड़ेगा। तो 12 बजे तो सबको उठाया और 1 बजे की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमें मोटर बोट दी थी। तो वहां पिरोटन आइलैंड हम बराबर 6:30-7 बजे पहुंचे। वो आप कल्पना कर सकते हैं कि रात के अंधेरे में पूरी टीम को, फोटोग्राफर, दो फील्डमैन, मैं और मेरा असिस्टेंट KM राव, ऐसा सब मिलके उधर गए और पूरा दिन उधर काम किया और शाम को लौटे। तो वहां काफी वनस्पतियां मिली, एक नया रिकॉर्ड भी मिला। सीरी ऑफ टेगल ऊपर जो एक वो मैं स्लाइड्स के साथ दिखाऊंगा, एक रोसेला बेलेंजेरिया, वो ऊपर सिम्बायोटिक लाइकेन मिला, वो न्यू रिकॉर्ड फॉर वेस्ट कोस्ट प्रसिद्ध हुआ। तो ये बाद में मैं स्लाइड के साथ बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, इसके ये जो एविसिनिया मराइना वेराइटी एक्यूटिसिमा, उसके लीव्स है तो एक्यूमिनेट है। वो उसका जो मैंने एक रेखा चित्र भी इसमें ज्वाइन किया है कि कैसे वो एक एविसिनिया मराइना और एक्यूटिसिमा में क्या फर्क है। तो वो भी ये पिरोटन आइलैंड से मिला है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, ये भी है उसका, ये ऊपर वाला जोड़िया बंदर, ये पिरोटन आइलैंड है। ये इसका एविसिनिया मराइना का जो, हाँ, उसका कैसे फ्रूट्स रहता है, लिप कितनी चकचकित है, कितनी शाइनिंग है, और पीछे वाला कितना वो हेरी है, और फ्रूट्स का भी फोटोग्राफ, क्लोजअप ऑफ फ्रूट्स ऑफ एविसिनिया मराइना। नेक्स्ट स्लाइड। एविसिनिया मराइना वो पूरा वलसाड उमरगांव क्रीक में हम गए थे। सबसे पहला विजिट है उमरगांव क्रीक आता है कि तो उमरगांव क्रीक में पूरा उसका व्यू फोटोग्राफ्स है एविसिनिया मराइना। और वहां हमें एक नया रिकॉर्ड भी मिला वो खाड़ी में एविसिनिया। ये नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया है, मगर हम जो जो मिलती है स्लाइड्स उसका वर्णन करते जाएंगे। और तो वो फिर है ना, हमें वे करना, ये कैसे उसको है ना उसका नाश हो रहा है। तो पहली स्लाइड है वो केमिकल कैसे नाश करते हैं। तो उसका पिरोटन आइलैंड है तो सलाया मथुरा पाइपलाइन है, वो उसमें जो जेरी ये ऑयल है छिड़कते थे, उसके कारण उसको मेनू उसका नाश होता था। तो वहां के फॉरेस्टर ने बताया कि साहब ये इसको लिखे। तो हमने ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद जो रिपोर्ट भेजा, तो वहां हमारे डायरेक्टर की ओर से हमारा जो रिपोर्ट दिया और उन्होंने भेजा कि भाई इसमें थोड़ा उसको कार्रवाई, उचित कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो है नीचे वाली स्लाइड्स है, तो वहां कुछ महिलाएं हैं, वो टोपा भर के, हम बोलते हैं ना, ऊपर आप देखते हैं कितना बोझा उठा के जाती है। वो है ना लीव्स है, वो फोडर के लिए, घास चारे की दृष्टि से वो फोडर के लिए, वो मैंने कि भाई आप तो बड़ा काम कर रहे हैं, आपका है ना आठवं के यादगिरी के लिए फोटो लेना चाहिए। तो वो हम जम्मू से भी जाते थे ऊपर का, तो वहां ये फोटोग्राफ लिया था। तो किस प्रकार से फोडर वैल्यू, हाउ दे आर डिस्ट्रॉइंग द मैनग्रोव्स। नीचे वाला स्लाइड दिखाइए साहब। हाँ, थोड़ा फोकस कीजिए। टेमेरिक स्ट्रॉपी जो हेलोफाइटिक वनस्पति है उसका, और साल्वाडोरा पर्सिका भी है उसके साथ में। और साथ में जो पीछे देखेंगे तो एविसिनिया मराइना की भी झुंड दिख रहा है। तो किसका, वो मेनूस अकेले नहीं थे, जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं ना, तो उसके साथ भी वो उसका संकलित एसोसिएटेड प्लांट्स रहते हैं, संलग्न पौधे रहते हैं। तो એમના સાથે સંકળાયેલા જે વનસ્પતિઓ છે એનો પણ સાથે ફોટોગ્રાફ બતાવ્યો છે। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, तो हाँ, ये है ना, आप देखेंगे कि लकड़ियों का ढेर दिखता है। ये कुछ नहीं है मगर ये लकड़ियां है ना मैनग्रोव्स का स्टेम है, और उसको
फ्यूल के लिए ये यूज कर रहे हैं। तो ये बात ऐसी है कि है ना, डीके कुलकर्णी फॉरेस्टर था, उन्होंने बताया कि उधर का जो सौराष्ट्र और गुजरात के कई मैंग्रोव विस्तार जो फॉरेस्ट एरिया, खास करके ये चेर 1 है, तो मैंग्रोव का विस्तार उसका नाश, क्योंकि 10,000 जो है वहाँ के जो वाघेर कम्युनिटी, तो वो है ना उसके पर ही जीते हैं, उसको फ्यूल की दृष्टि से उसका नाश कर रहे हैं। तो कैसे मैंग्रोव का नाश हो रहा है, हेजार्ड्स, तो वो खास वो बताया है। ऊपर है, थोड़ा फोकस कीजिए। हाँ, केमल ब्राउसिंग, जो किस प्रकार से केमल्स है वो 2500 2500 केमल्स रबारी है ना, वो उस पर जीते हैं। केमल का खाना है ना, उसका ढोर चारे के लिए केमल छोड़ देते हैं और उसको है ना स्टंटेड ग्रोथ हो जाता है। वहीद काम नाम का एक फॉरेस्टर था, उन्होंने रिपोर्ट किया कि ये है ना, बिकॉज ये स्टंटेड हैबिट इज ड्यू टू दैट केमल ब्राउसिंग। और डीके ये जो कुलकर्णी करके थे, उन्होंने बताया फॉरेस्टर ने कि ये फ्यूल के लिए नाश हो रहा है, इसलिए ये ढोरों का चरना केमल ब्राउसिंग स्टंटेड हो गया। नेक्स्ट वन प्लीज। और आगे बढ़िए, ये दिखा दिया। ये हो गया। हाँ, ये जो पहला स्लाइड है ना, सेरियोस्टेगल है, उसकी है ना ये है, उसके आप नीचे वाले देखेंगे तो उसमें है ना एक लाइकेन लगी है, कुछ पौधे है, वो लाइकेन है, रोसेला बेलेंजेरी है ना, ये अगर का रिसर्च इंस्टीट्यूट में है, वो उनका लाइकेन का स्पेशलिस्ट है, हमने उसको दिखाया है। अरे साहब, ये तो है ना, तो से आपको नया मिल गया है, इसको से है वह उपरेती करके जो लखनऊ का था, उसने अवस्थी, उन्होंने प्रसिद्ध किया, मगर ये करीबन 17 साल के बाद आपको मिला है वेस्ट कोस्ट से, तो वो भी वेस्ट कोस्ट का एक नया रिकॉर्ड हमें मिला। ये जो बाजू वाला है हेलोफिला ओवालिस, फिर बाद में वो टर्म है सब स्पीसीज राममूर्ति आना, तो ये हेलोफिला वो भी न्यू रिकॉर्ड फॉर वेस्ट कोस्ट। नीचे वाला है वो हमें है ना, ये हेलोफिला ओवालिस सब स्पीसीज राममूर्ति आना, जो बाद में टर्न हुई, वो हमें न्यू रिकॉर्ड फॉर। વિનોદભાઈ ઝૂમ કરશો? हाँ हाँ, ये है। हाँ, एक्सक्यूज मी। हाँ, ये पोर्ट्रेसिया कोर्टाटा, वो भी न्यू रिकॉर्ड फॉर वेस्ट कोस्ट। तो ये नई रिकॉर्ड स्थापित हुए स्टेट या तो वेस्टर्न रीजन के दृष्टि से, तो वो भी घास है, पहली बार हमें मिला, उसके उपयोग भी बहुत है, तो वो हम बाद में बताएंगे उसका यूजेस भी। थोड़ा हिलाइए साहब, एक मैं हिलाऊंगा तो बंद हो जाता है। गढ़वी साहब, जयदेव जी, स्लाइड को हिलाइए, आगे पीछे किए, वो मैंने देखा। हाँ, ये है यूरोकोंड्रा सेटुलोसा, वो भी है ना हेलोफाइटिक ग्रास है, यूरोकोंड्रा सेटुलोसा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जो सी ग्रास के बारे में मैंने उल्लेख किया, उसके लिए आपको ताज्जुब लगेगा कि ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट आया था, मेरे ख्याल से सिंह साहब भी उस समय थे, तो वो परमिशन डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट की जैकब या ऐसा कुछ नाम था, तो वो आया था, पूरा दिन मेरे साथ रहा। उनके खास उनको दिल्ली से परमिशन लेनी पड़ती है, तभी यहाँ के वैज्ञानिक या तो एक्सपर्ट को मिल सकते हैं। तो उसके साथ एम्प्रेस गार्डन वगैरह पूरा दिन, साहब ने जीप भी थी, तो हम घूमे थे। वो 7 क्लासेस है, वो रिपोर्टेड है। तो ग्रास में और मैंग्रोव्स में वो मिस्टर जो है डॉक्टर जैकब, वो काम करते थे। बाद में मैं सुंदरबन भी गए। हाँ, थोड़ा आगे वाला दिखाइए साहब। ये है ना ब्रुगेरिया जिम्नोराइजा, उसका जो रेड दिखता है ना, ये बाजू घुमाइए, उसको घुमाइए साहब, पहली स्लाइड दिखाइए, बराबर फोकस कीजिए सर, थोड़ा हिलाइए, अब ये बाजू, पहली वाला, हाँ ये वाला बराबर है, अभी ठीक है।
जो लाल जो है ना वो उसका वज्रदल है, कैलिक्स है, रेड है, उसके कारण वो हम पहचान नहीं सकते, ब्रुगेरिया जिम्नोराइजा। और उसका जो फल है, फ्रूट है, विविपेरस जर्मिनेशन। विविपेरी इज द मेन उसका कैरेक्टर ऑफ द मैंग्रोव्स। विविपेरी जहाँ पेरेंट प्लांट्स पर ही उसका जर्मिनेशन होता है, और नीचे है उसके रूट सिस्टम है, वो डी टाइप की है। वो घुटने कैसे रहते हैं, वो उसको आधार देते हैं। जो नी रूट टाइप ऑफ रूट सिस्टम वो ब्रुगेरिया में ही मिलती है। तो ये है ना उसके विशेषता ब्रुगेरिया प्रजाति की। तो नी रूट टाइप ऑफ सिस्टम, उसके ये रूट सिस्टम को देखकर भी हम पहचान सकते हैं कि ब्रुगेरिया है। ओळख कैसे करनी, आइडेंटिफिकेशन इज द मेन। बाद में दूसरा स्लाइड। हाँ, ये जो एकदम जो पिंक कलर का जो देखता है वो है ना सोनेरेसिया कैसियोलारिस है। उसके कितने अद्भुत उसका कलर है, फ्लावर्स पिंक कलर, और उसके जो साइड में है उसके फल में है। और नीचे वाली साइड है एजिसेरस कोर्डिकुलेटम। देखिए हुक टाइप का उसका फल है, लाल रंग का। उसके बाजू में उसका पुष्प कैसे है। और नीचे वाली स्लाइड है जो विविपेरस जर्मिनेशन दिखता है, वो कांडेलिया कांडेल है। वो भी कैसा जर्मिनेटेड है उसका, ये विविपेरस जर्मिनेशन हुआ है उसका, कांडेलिया कांडेल। और बाजू वाला है वो फ्लावरिंग में है। जो ओळख करनी है तो फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग ब्रांच होनी चाहिए। केवल उसका वेजिटेटिव ब्रांच से है ना कम पता चलता है। हमारे वेस्टर्न सर्कल में 100 साल पुराना भी है और लाखों स्पेसिमेन है ये वेस्टर्न सर्कल में। बाद में उसकी बात करेंगे कभी। तो थोड़ा आगे बढ़िए, गढ़वी जी आगे बढ़िए। हाँ, अभी थोड़ा एक जूम करता हूं मैं, बराबर दिखे इस दृष्टि से। हाँ, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, क्योंकि है ना सभी को है ना कुछ बातें ऐसी है ना उसका यूज क्या है। जो पुराने लोग है ना भाई सब बातें ठीक है मगर आपका उपयोग क्या होता है, तो उस दृष्टि से हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा दिखे इस प्रकार से दिखाइए, नहीं तो मैं पढ़ जाता हूँ, मेरे पास जो लिटरेचर है। ठीक है, तो यूज इसके बारे में बताता हूँ मैं। मेन यूज है ना, एक मिनट रुकिए, बराबर जूम करेंगे तो मैं दिख सकूंगा और पढ़ के बता सकता हूँ, नहीं तो मैं मेरे पास लिटरेचर है वो पढ़ के दिखाता हूँ। पहले तो मैंने जो इसे बात किया कि मैंग्रोव्स है ना शेल्टर, ये 5वां गया। हाँ यस प्लीज। बहुत तरीके से मैंग्रोव्स आपको मैनकाइंड को उपयोगी है। दे प्रोवाइड वुड फॉर फर्नीचर, बोट बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन एंड फ्यूल। हाँ, बोट बिल्डिंग के लिए काम, उसका फर्नीचर बनाने के उसका लकड़ी काम आती है। उसका जो ग्रीन लीव्स है वो फ्रूट है वो, और खास करके एविसिनिया प्रजाति के, दे आर यूज फॉर फोडर। अब घास चारे के लिए काम करते और ड्यूरिंग केव सिटी। और फिर स्टेम बार्क है, गुड सोर्स ऑफ टेनिन, टेनिन के लिए उपयोगी है, जो लेदर इंडस्ट्रीज में और मेडिसिन में भी काम आता है। खास करके डायोरिया, ब्रुगेरिया की जो छाल है वो ब्रुगेरिया जिम्नोराइजा का, तो वो अतिसार या तो डायरिया में काम आती है। अभी राइजोपरा मिक्रोनेटा है, उसकी छाल है ना वो हार्ट डिजीज, एंजाइना जैसा हार्ट डिजीज में काम लगती है। फिर एस्थमा और रूमेटिज्म में भी एकेंथस इविशिफोलियस, हाँ वो जो उसकी जो छाल स्टेम बार्क है, एस्थमा एक माने दमा और रूमेटिज्म संधिवात, उसके लिए उपयोग है। और फिर लुमिनिसेरा रेशिमोसा नाम का है जो मैंग्रोव प्लांट है, वो हर्पीज एंड एचिस के लिए काम आता है। ये तो कुछ उपयोग बताया मैंने, आप सुन सकते हैं ना। तो इनडायरेक्टली भी है ना, ये डायरेक्ट यूज हुआ। इनडायरेक्टली इट प्रोटेक्ट्स इनलैंड प्लांट्स अगेंस्ट विंड एंड एक्ट्स एज ए बफर एजेंट। वो चौकीदार कैसा रहता है, घर में चौकीदार रखता है सोसाइटी में, वैसे सुनामी जब भी बहुत ये बाढ़ आती है
पानी की समुद्र में बाढ़ आती, तेज हवा और अन्य कारण से, तभी जो मैंग्रोव्स है ना बफर एजेंट के नाते काम करता है, और जो इसके पीछे वाले प्लांट्स को भी बचाता है, आजू बाजू वाले जो ये रहते हैं अपने इंडस्ट्रियल या तो प्रोजेक्ट रहता है, मकान रहता है, जो कुछ भी उसको बचाते हैं, तो वॉचमैन के नाते वो काम करता है, चौकीदार के नाते। और सुनामी वगैरह में तो यदि आपने सुना हो तो अंडमान अन्य अन्य जगह पर सुनामी से मुल्क के कई मिलकतें और दरिया किनारे की जो वास्तु वो ढह गई सुनामी के कारण, मगर उसमें मैंग्रोव्स ने काफी कुछ उसका सहयोग था बचाने के लिए, ये सब प्लांट्स के लिए। और सोइल इरोजन, क्योंकि ये उसके कारण जो सोइल रहती है ना वो ढह जाती है, तो ये सोइल इरोजन में वो बच्चा ये मैंग्रोव्स के कारण नहीं होता है। तो ये मैंग्रोव्स के बाद बहुत सारा इनडायरेक्टली यूज है। पर्टिकुलर रूट सिस्टम है ना न्यूमेटोफोर्स, नीर वो है ना सैंड एंड मड पार्टिकल जो पकड़ के रखती है, और स्टेबिलाइजेशन ऑफ कोस्टल लैंड एंड कंजर्वेशन ऑफ सोइल। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, थोड़ा जूम करेंगे साहब। हाँ, ये दिखाया मैंग्रोव्स, और नीचे वाला है राइजोफोरा म्यूक्रोनोटा का है, उसका देखिए सुंदर सफेद रंग के फूल है। हाँ, राइजोफोरा फ्लावरिंग ट्विग है, और नीचे वाला है कांडेलिया कांडेल, वो भी दिखाया आपको, आगे दिखे। हाँ, ये राइजोफोरा जो है ना, नीचे वाला थोड़ा दिखाइए, नीचे वाला फिर ऊपर वाला देखेंगे। हाँ, राइजोफोरा म्यूक्रोनेटा, देखिए बनियन ट्री की कैसे रहती है क्लिंगिंग रूट्स, हाँ, वड़ की वड़वाइयाँ, वो ये है ना, ये आधार देती है उसके जो ये जो आधार के नाते उसके रूट सिस्टम है ना काम आती है, स्टेम में से वो निकलती है, और वड़ की वैसे बनियन ट्री की कैसे आधार देती है, वैसा ही राइजोफोरा म्यूक्रोनेटा का है। ये चोरा लैंड गोवा का फोटो है। नीचे वाला है ना, थोड़ा दिखाइए, प्लांट्स निकल गए, फोटो प्लीज। हाँ, यस प्लीज। हाँ, नीचे ये है ना उंडी बोलते हैं, वो मैं बताऊं आपको, उसका नाम भी है। वहाँ व्हाइट कलर जो फ्लावर वाला है ना, वो कैलोफाइलम इनोफाइलम उडी उंडी बोलते हैं, बराबर। ये है ना, उसके सीड ऑयल है ना, ये रूमेटिज्म और पेन के लिए उपयोगी है, काफी उपयोगी वृक्ष है, और बड़ा खूबसूरत है। केलोफाइलम इनोफाइलम, उसके फल भी देखिए, फूल भी देखिए, उसके फूल और फल से आप पहचान सकते हैं ये उंडी या तो केलोफाइलम इनोफाइलम है। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, जयदीप जी थोड़ा दिखाइए आगे, गढ़वी साहब। વિનોદભાઈ આગળની સ્લાઇડ દેખાડો, આગળની, આ પહેલાની. હા બસ ઝૂમ કરો, ઝૂમ. हेलो, आवाज सुनाई देता है मेरा? सुनाई देता है सर, बोलिए. कह सकते हैं को बोलिए आप कि ये लाइट दिखती नहीं है, मैं बात विनोदભાઈ ફરતી શેરિંગ કરો તો. हाँ जी, हाँ बस दिखाई देती है अब.
ये नहीं दिखाई दे, कुछ नहीं दिखाई हाँ। देता है। हाँ, विनोद भाई फरती शेयर करो तो। એમાં હું ઝૂમ તો કરું છું પણ લેટ આવે છે તમારે આગળ. ના બોલો. સમજાય મારું કઈ ઝૂમ વાંધો કરું નહીં. ત્યાર પછી ત્યાં શેરિંગ ફરીથી શેર આ ફરીથી શેર કરું ફરીથી છું શેર. પણ ત્યાં લેટ આવે છે સમજ્યા તમે. હા કઈ વાંધો નહીં. બોલો हाँ દેખાય बस છે है હવે? जूम। हाँ दिखाई सर दिखाई देती है। अब जूम कीजिए। भी दिखाई नहीं देता है। दिखाई देता है सर। બીજા બધાને દેખાય સાહેબ? मेरा फोटो हाँ आया, બાકીના બધાને દેખાય છે, સાહેબને નથી દેખાતું। चलेगा। સાહેબ ને કહો લેફ્ટ થઈને રિઝ્યુમ ફરી પાછો જોઈન્ટ થાય. હા વિનોદભાઈ તમે બંધ કરી દો, હું શેર કરું છું. ઓકે હાલો ધન્યવાદ. भाविन भाई देसाई स्क्रीन शेयरिंग करेंगे। तक मैं जो बताता सर आपका कोठारी सर आप देखा सकते हैं क्या? अभी मैंने शेयर किया है कोठारी जी। हाँ बोलिए बोलिए। जी अभी मैंने शेयर किया, स्क्रीन शेयरिंग मैंने किया है, जरा आप देख लीजिए ना, मेरे में क्लिक करके देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा है क्या? अभी मेरा फोटो आ कर ये प्राइस तो भी दिखा, लिखा हुआ दिखा, मगर लिखा हुआ पढ़ नहीं पाएंगे आप, है ना स्लाइड्स है तो स्लाइड्स ही दिखा, पढ़ नहीं। भाविन भाई शेयरिंग करो, નથી દેખાતું હજુ। स्लाइड्स दिखाड़ो ना तो सबको स्लाइड्स में इंटरेस्ट है, तो मैं यूज ना किसी ने आज है ना पढ़ लेता हूँ, आप स्लाइड्स दिखाने की कोशिश कीजिए। हाँ द्वारा सच में उसके फोटो सर सर कोठारी सर आपका वीडियो ऑफ कर दीजिए। एक मिनट। हाँ हाँ भी वो कैसे करना वो भी मुझे तो जमेगा नहीं। लाल बटन से पहले बीच में होता है। સર હવે મારો તો દેખાય ને બરાબર સ્ક્રીન શેરિંગ દિલ્હી સાહેબ? हाँ તમે સ્ક્રીન શેરિંગ દેખાય છે। ઓકે हाँ बोलिए सर अब। हाँ આના પછી હજુ ફેરવી નાખો નેક્स्ट। हाँ ये तो दूसरी स्लाइड आ रही है। हाँ હજુ ફેરવી નાખો। આને જો ભાવિનભાઈ ઝૂમ કરશો હોય, ભાવિનભાઈ સ્લાઇડ ને ઝૂમ કરો। ભાવિનભાઈ સ્લાઇડ ને ઝૂમ કરશો। ભાવિનભાઈ કરું છું એમાં, મેં અહીંથી તો મેં સ્લાઇડ ઝૂમ કરી છે, ત્યાં જુઓ છો? ના જો હવે હા આવ્યું ઝૂમ થયું એટલે સાહેબ આવ્યું? જોઈ શકે ને, વાંચી શકે। હા વાળું દેખાડો, લખાણ હવે વાંચાશે નહીં સાહેબ। હા થોડુંક વધુ ઝૂમ કરો ભાવિનભાઈ। ઓકે હા નહીતર યુઝિસ છે વાંચી જાઉં છું ના બરાબર એ શોધ सर अब दिखाई देगा। ઝૂम अच्छा, किया अच्छा। है। अच्छा
मैं क्या राइजोफोरा मुक्रोन एपिक्युलेटा, बुगियरिया जिम्नोराइजा। मगर दिखता नहीं है ना साहब। कुछ भी लिखा हुआ दिखता है स्लाइड, बाकी फोटो वाला स्लाइड नहीं दिखता। फोटोग्राफ ने जूम करो तो फोटोग्राफ बस। हाँ दिखता है कुछ तो भी। भाई નું નામ જો ત્યાં સુધી કરો ત્યાં સુધી હું ઉપયોગ જે છે મારા પાસે લખેલા એ વાંચી લઉં એટલે તમને ખ્યાલ આવે. ખાસ કરીને એવીસીને મરાઈમાં એક્યુટીસીમાં જે પિરોટન આઇલેન્ડ પર મળે છે એના ઓર્ડર તરીકે આવે છે, સ્ટીમ તરીકે કામ આવે છે. એવીસીના ઓફિસરની જેને ચેર હતા તો તિવાર કહેવામાં આવે છે, તવરા કહેવાય છે, અને કોંકણીમાં ઈપળ કહે છે અથવા ઉપાટી કહે છે. ઓફિસનાલિસ જે જખૌના મોટા પેડ આપણે જોયા હતા પ્લાન્ટ્સ, એ ઉદવાડામાં ઉમરગામમાં પણ મળે છે. એની છાલ મટીરિયલ લીવ્સ ફોડર તરીકે, ફ્યુઅલ તરીકે, ફ્રૂટ છે એ सर आपका वीडियो बंद कीजिए। हाँ जी, वीडियो बंद कर दीजिए। अभी वो वीडियो वाला कौन सा है साहब, वो मेरे को मालूम नहीं। बीच वाला है ना, ये तो रेड के बाजू में। सब सब हाँ हाँ, ओके सर, ओके सर। ભાવિનભાઈ પછીની સ્લાઇડ છે, લિસ્ટ વાળો છે ને મૂકો. લિસ્ટ નથી બનાવવું આપણે, છે ને ફોટા હોય ને એ દેખ કે લિસ્ટ હોય આ લિસ્ટ આને ઝૂમ કરો. એવી ફોટા કન્યા સ્લાઇડ્સ કલર તેના થોડું વર્ણન અને સાથે આપણા પાસે જે જેમ કે છે ને આપણે કાલે રહી ગયેલું આમાં મેડિસિનલ રોન્સમાં અને આવે છે, ખાસ કરી જય ઠાકર. हाँ सर वीडियो ऑफ कीजिए सर। वो ऑफ करूंगा तो सब बंद हो जाएगा। नहीं नहीं, वीडियो बीच वाला है ना। मेरा ना, मेरा फोटो दिखता है वो बंद करूं? हाँ, आपका फोटो दिखता है वो आप नहीं कर सकते, मुझे मैं करूंगा तो सब बंद हो जाता है, वो उल्टा सुल्टा हो जाता है, मेरे को जमता नहीं है भाई साहब। अच्छा तो ये है ना, वो करवा मेरे को जाता हूँ ना, मैं दूर से रख बोलता हूँ यार, मेरा आवाज आता है क्या? हाँ, वो आवाज डिस्टर्ब होती है इसलिए वीडियो ऑफ करने का बोलता हूँ। नहीं अभी थोड़ा है ना, अभी वो करने जाऊंगा तो दूसरा बंद हो जाएगा, ये गड़बड़। ये अभी टेक्निक है ना, हमारे पुराने इतना वो नहीं, स्लाइड सीधा छोटा छोटा स्लाइड दिखाते थे। अभी बस ये अब चालू रखिए, चालू रखिए। आवाज आता है कि नहीं? हाँ, वो है अब ना, आता है, अब क्लियर आता है, बोलिए बोलिए। तो वो है ना, आप घुमाते जाइए, मैं बोलता जाऊंगा, ये कर सकते हैं। हाँ, मैं एक एक स्लाइड घुमाते आगे जाइए, आप जी बोलिए कि स्लाइड फेरो फाइन भाई। स्लाइड घुमाओ तो मैं उस हाँ स्लाइड हाँ मैं क्योंकि मैं बोलूंगा तो समझ में नहीं आया और बोरिंग लगेगा, तो स्लाइड्स देखेंगे तो थोड़ा चित्र भी दिखेगा और हेल्प मिलेगी। नहीं हजू आगे हजू ले जाओ, ओली बाजू आगे आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ આવી ગયું છે, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हजू आगे, हजू आगे। घुमाइए तब यूसेज बोलता रहता हूँ। एक्सोकर अगालोचा वो भी है ना, वो
क्या बोलते हैं गुजरात में, जे या अगालोचा, वो भी मेन ग्रुप ज्यूस है, वो एक्रिड क्रिस्टल का फूले बनते हैं ना अपने शरीर पर, चमड़ी पर वो ब्लिस्टर होता है, और अंधा उस ये कोड बना के फ्यूल के ये सब काम में वो बनर्जी ने को रिपोर्ट किया था, उन्होंने भी प्रवास किया था। गोवा में उसको यूरो बोलते हैं, एक्सोकारे अगालोचा में, कोंकणी भाषा में बरका। और लीफ एक्सट्रैक्ट वो एपिक काम आती एक्सट्रैक्ट से के लिए, टेनिन के लिए, टेनिन आपको बताया, तो वो भी उसके लीव्स के लिए, पिक्चर के लिए और टेनिन के लिए उपयोगी आता है। और फ्लावर है ना व्हाइट और फ्रेग्रेंट है, सुगंधी है। फिर लुमिनिफेरा रेसिमोसा, वो भी एक उसको बोलते हैं, दालगांव ने रिपोर्ट किया है, ठीक है। प्लांट्स है ना उसके जो है ना इस चीज है लुमिनिफेरा रेसिमोसा, हर ગુજરાતીમાં નાગણ એને હર્પીસ માટે કામ લાગે અને हेलो हाँ हेलो कोठारी सर। बोलिए सर। सर आपका ये प्रेजेंटेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपका वीडियो ऑन है ना, तो आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, कट हो रही है। तो मैं हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ, आपका जो स्क्रीन के ऊपर एक रिसीवर के जैसा लाल बटन जो है जो दिखता है, इसके बाजू में वीडियो कैमरा वाला जो दिखता है वो दबा दीजिए, आपका फोटो वाला वो बंद हो जाएगा। मेरी ठहरिए मैडम, लाल जो है ना रिसीवर के जैसा दिखता है वो मत दबाइए, सभी है ना, उसके बाजू में वीडियो कैमरा जैसा दिखता है वो दबा दीजिए आप। बीच में सेंटर में है, सेंटर में वीडियो कैमरा के जैसा दिखता है सर। जी हाँ, अब आवाज क्लियर सर, इज वेरी रियली वेरी इंटरेस्टिंग, सो प्लीज कैरी ऑन सर, प्लीज। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, प्लीज कैरी ऑन। अच्छा किया, मगर मुझे है ना जमता नहीं है, तकलीफ ये सर ये हो गया है ना, अब हो गया है। ओके प्लीज कंटिन्यू सर। हाँ, तो लुमिनिफेरा रेसिमोसा के बारे में मैं बताया, वो स्लाइड्स मेरे पास नहीं है, मगर दालगाड़ो ने गोवा से रिपोर्ट किया है, ठीक है मैडम। तो दालगाड़ो जो पुराना वो वर्कर था, साइंटिफिक वर्कर, तो वो रिकॉर्डेड फ्रॉम गोवा, हाँ, सियोलिम रेरिम क्रिक से 7 एस्चुरीज है गोवा में, उसमें से रेरिम और सियोलिम नामी एस्चुरी है, वहां से उन्होंने कलेक्ट किया था। और वो उसका जो प्लांट है ना हर्पिस और इचिस के लिए काम आता है। ये लुमिनिफेरा रेसिमोसा के बारे में बताया। अगर अगालोचा के बारे में पहले मैंने बता चुका हूं। हाँ, अभी डोलिकोंड्रोन स्पेदेशिया, ભાવિનભાઈ આગળનો લઈ જાઓ, આ તો આવી ગઈ હતી. આગળ લઈ જાઓ. પાછળ ખસેડી શકે તો એમને કોને આપણે સાહેબ હા જરા મારો ફોટો નહીં દેખાય ચાલશે, પણ સ્લાઇડ દેખાવી હા કરો। છે એ વિજય સર, આનાથી આગળ જાઉં કે કેવી રીતે કરવાનું છે? આપણે અહીંયા સુધી હતા, આ આવ્યું છે બરાબર, અહીંયા સુધી હતા. હવે આગળ આગળ ફોટોગ્રાફ આવ્યો હોય સ્લાઇડ ત્યાં લઈ જાઓ બીજા. એના પછી આ છે, હા આ નહોતી આવી. આ
આમનામાં કઈ લખ્યું નથી એટલે આગળ લઈ જાવ હજુ જે આપા મને હજુ આગળના પાના લઈ જાઓ હજુ આગળ લઈ જાઓ સાહેબ આપણે ઝૂમ કરીશ પણ વાંચી નથી શકતા પોર્ટ ટેરેસિયા કોઆર્ટિકા મરેન ગ્રાસ છે હા પોર્ટ ટેરેસિયા કોઆર્ટાટા એ પણ ન્યૂ રેકોર્ડ છે વેસ્ટર્ન કોસ્ટ થી ન્યૂ રેકોર્ડ घोघा में पाया जाता है सर घोघा में है बराबर भावनगर में घोघा में पाया जाता है है। यहाँ आए थे तो विक्टोरिया आपका जो है वहाँ हमें ये वीआईपी गेस्ट हाउस में रहने को दिया था और हम पिरामिड भी गए थे आप पिरामिड में मैंग्रोव जो पाए जाते हैं हाँ वहाँ हमारे राघवन साहब गए थे उसको एक सी ग्रास मिला था राघवन साहब राघवन हाँ पोर्ट टेरेसिया घोघा में पाया जाता है पोर्ट टेरेसिया कोआर्टाटा मैंने आपने आपने मुझे दिखाया था ग्रीन कलर का आपने वो प्राइस भी आपका भेजा था पोर्ट्रेट से टाटा हाँ तो આગળ લઈ જાવ તો ભાઈ હા અને ઝૂમ કરશો ઝૂમ કરો ઝૂમ હા देख थी देख छूसे बोलिए सर हाँ रहे ना आप स्लाइड्स वगैरह कुछ दिखती नहीं है तो कार्पस रिपोर्टेड 1980 उसके बाद फिश पॉइजन के लिए है और सेपो है 7 से और अच्छी जात का मिलता है बना सर आपकी आवाज कट रही है इसलिए वीडियो ऑफ कर दीजिए मगर वो कैसे करना मुझे जमता नहीं ना भाई साहब रेड वाला के बाजू में है वीडियो का सिंबल है रेड वाला रेड के बाजू में बगल में है ने बोल पंकज भाई ने कि कोई ने बोलिए सर हाँ तो ये ऐसे ही बोलता हूँ मैं आप बोल जाइए हाँ एजिसियस कॉर्निकुलेटम के मैंने बताया वो चावरियो बोलते हैं उसका फिश पॉइजन के लिए काम आती है और वो अच्छा जाता है हनी उसमें से उसका जो फ्लावर मिल से मिलता है और वुड है ना कंस्ट्रक्शन एंड फ्यूल के काम आता है फिर एक्रोस्टिकम ओरियम जो गोवा में ही मिलता है वो लिटरल फर्न बोलते हैं हाँ और उसका जो कौले कौले पान है ना वो एडिबल है वेजिटेबल के नाते और राइजोम पेस्ट है वो बॉइल्स के लिए काम आती है फिर ब्रुगेरिया सिलिंड्रिका वो जो सिलिंड्रिका जो प्लांट है ब्रुगेरिया सिलिंड्रिका वो साउथ गुजरात में से रिपोर्ट किया है और ये भी न्यू रिकॉर्ड फॉर गुजरात एज वेल एज गोवा शाह एंड बैनर्जी ने देखा है मगर बाद में नहीं मिला यूजी उसके टिम्बर है टेनिन है फ्यूल के लिए है जिम्नोराइजा के बारे में हमने बता दिया उसका मगर उसका जो फ्यूल के लिए ही है फिश बोट के लिए स्टेम बार और बार टेनिन के लिए ब्रुगेरिया पार्विफ्लोरा वो नहीं मिला है
मगर नस्कर एंड मंडल ने 1999 में रिपोर्ट किया था और उसके फल है वो मेडिसिन में काम आता है और आई डिजीज के लिए काम आता है। और नी रूट्स उसके है ब्रुगेरिया पार्विफ्लोरा के, वो परफ्यूम के लिए बनाने में उपयोगी है, ब्रुगेरिया पार्विफ्लोरा। तो इस प्रकार से बहुत सारे यूजेस है, आपको मैंने बताया। मगर आपको ये सीरियस टेगल वो कन्नरी बोलते, कन्नरी वो कच्छ में से मुंद्रा और सीरियस टेगल का पिरोटन आइलैंड में हमने बताया था कि उसको सिम्बायोटिक लाइकेन रोसेला बेलेंजेरिया उसके थल पर, उसके स्टेम पर आपको मिलती है। उसके जो ये रूट है ना, विविपेरस रूट, उस पर मिलती है। और उसका वुड है बोट बिल्डिंग के लिए काम आता है, सीरियस टेगल। और रूट डिकॉक्शन है, इट इज सब्स्टिट्यूट ऑफ क्विनाइन। क्विनाइन जो अपने ताप के लिए काम आती है, तो वो रूट डिकॉक्शन उसको दिया तो ताप निकल जाता है। और स्टॉप हेमरेज ऑल्सो एंड अप्लाइड और ऑन मेलिग्नेंट अल्सर्स, जो चांदे होते हैं अल्सर के, तो उसको है ना वो स्टॉप है, उसका जो लहू बहता है उसको थम जाता है। स्टॉप हेमरेज एंड अप्लाइड ऑन मेलिग्नेंट अल्सर्स। राइजोफोरा एपिकुलेटा, तो उसका जो लीव्स है ना एपिकुलेट है, उसको लोकल नेम करोड़ बोलते हैं। और सौराष्ट्र में पिरोटन आइलैंड में मिलता है। उसका स्टेम बार्क है, टेनिन में है। और वुड एंड लीव्स फ्यूअल और फूड के लिए काम आता है। म्यूक्रोनेटा वो करोड़ बोलते हैं, और इसको राइजोफोरा म्यूक्रोनेटा को कांडेल बोलते हैं, करोड़ बोलते हैं। और कच्छ में कंडला और मुंद्रा में भी मिलता है। सौराष्ट्र में द्वारका से रिपोर्ट किया है। और फिर सोनेरसिया अल्बा, सोनेरसिया एपेटेला, सोनेरसिया कैसियोलारिस, वो सब मैंने बताया है। अभी उसको इसको बचाना है तो कैसे हम बचा सकते हैं? तो उसको उगाओ, रीजनरेशन करो। सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम के तहत गोवा का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने चोराव आइलैंड, जिसका नाम सलीम अली बर्ड सेंचुरी बोला उन्होंने बाल में, तो 4 लाख प्लांट्स उनको लगाया, सीडलिंग्स इन द पेरिफेरी ऑफ चोराव आइलैंड। और हमने देखा है, उसका फोटो हम दिखा नहीं सकते क्योंकि यह कुछ तो भी गड़बड़ है, तो टेक्निकल प्रॉब्लम, तो इसलिए आप भी नहीं दिखा सकते और मैं अनेबल हूं दिखाने में, क्योंकि मुझे जमता नहीं है। आपने बताया कि ये बंद करो वो बंद करो, मगर मुझे जमता नहीं है। तो मैं उतना ही बता सकता हूं कि अंडर सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 4 लाख, तो उसके लिए उसका मुझे एक डेप्यूट किया था 5 साल के लिए। तो जैन साहब का प्रोजेक्ट था, मैं और डॉक्टर हजरा जो बाद में डायरेक्टर हुए, डायरेक्टर BSI, तो उन्होंने खास बताया कि प्लांट को कैसे बचाना। तो लार्ज स्केल कल्टीवेशन, उसको जनरेट करो, उसको कल्टीवेट करो, और जो जनरेट हुआ है प्लांट्स उसको दूसरी जगह लगाओ। जैसे एक हमने हाइपिनी डाइकोटोमा जो उना टू डेल वाला, वो एंडेमिक टू वेस्टर्न कोस्ट है, उसका फोटो है ना, था ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स है, मैंने इसमें भेजा था, आप बाद में देख लीजिए। यदि आप दिखा सके तो मैं दिखा सकता हूँ, क्योंकि अभी ये इसमें है ना, आई एम अनेबल टू शो। ओके सर। हाँ, ये उसका है ना, टू दिल ट्यूब की बाजू आप जाएंगे ना, तो रोड साइड एवियो ट्री के नाते हाइपिनी डाइकोटोमा डबल पाम को लगा है उसको। तो ये एंडेमिक टू हाइपिनी डाइकोटोमा, ऐसे लार्ज स्केल कल्टीवेशन उसको करना चाहिए। कोई भी वनस्पति नाश हो रहा हो तो उसको है ना बचाना चाहिए। और उसका कंजर्वेशन के लिए बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो 10 ये एरिया स्थापित किए हैं, और खास करके नेशनल पार्क उसका, जैसे जखऊ, फिर द्वारका में मरीन नेशनल पार्क, मुंद्रा में नेशनल पार्क, और फिर ये जैसे इधर भी नेशनल पार्क चोराव आइलैंड, उसमें भी नेशनल पार्क बनाया, सलीम अली बर्ड सेंचुरी, और
आप कोचीन में जाएंगे तो मैंगो रिसर्च सेंटर भी खोला गया, उसका बच्चों को पढ़ाने का, और ये कोचिंग सेंटर भी खोला गया है। खास करके रेडियो टेलीविजन उससे जो प्रचार प्रसार होना चाहिए कि ये वनस्पति बहुत ही उपयोगी है, तो उसका नाश न हो, तो उसको तो जागरूक किया जाना चाहिए। तो ये बात है ना, हमें यदि उसका प्रचार प्रसार किया, और ये मैंगो विश्व मैंगो डे है, तो मैंने जैसे मुझे मालूम है, रत्नागिरी में हम गए थे मैंगो सिंपोजियम में, कोंकण कोस्ट के लिए मैं भी एक चेयर का सेशन करा बुलाया था उधर, वहां के साहब ने, पाटिल साहब ने। तो वो उधर तो है ना, ये फेरी निकालते हैं, प्रोसेशन जैसे फेरी लगाते हैं कि भाई मैंगो वृक्ष उगाओ और ये बचाओ लोगों को, ज्यादा वृक्ष लगाएंगे तो ये हमको ये क्या बोलते हैं, हमारे उपयोगी है, क्योंकि वृक्ष हमें रोटी कपड़ा मकान तीनों वृक्ष से ही पाए जाते हैं। तो वैसे मैंग्रोव्स बचाएंगे तो हमारा जो ये इरोजन होता है, हमारा जो चौकीदार है, चौकीदार घर में नहीं है या सोसाइटी में, तो क्या हालत होगी। तो पूरा जो वेस्ट कोस्ट है 5700 किलोमीटर लंबा है, 700 किलोमीटर, 5700 किलोमीटर। तो ये कोस्ट है वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट। तो ये उसको बचाया कैसे जाता है, तो वो तो है ना मैंग्रोव्स है, दे एक्ट एज ए बफर एजेंट। तो उसकी दृष्टि से मैंग्रोव्स ऑफ इंडिया LK बनर्जी जो अभी नहीं रहे मगर उन्होंने प्रसिद्ध किया, किसके माध्यम से, BSI बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और मुझे अभी भी जो साहब तो हाजिर है, तो आइडेंटिफिकेशन इज द मेन आइडेंटिटी, प्रॉपर आइडेंटिटी एंड पब्लिकेशंस ऑफ रेड डाटा बुक्स, रेयर प्लांट्स, एंडेमिक प्लांट्स, उसके कई वॉल्यूम्स BSI ने प्रसिद्ध किए हैं। आपको ताजुब लगेगा, उनके हमारे साहब ही उन्होंने ना बोला था, फिर भी बता आइडेंटिफिकेशन के लिए है ना, एक हमारे जो BSI का जो कैंपस है, तो उसमें एक प्लांट है टाइलोफोरा एस्थेमेटिका, उसको उगाया जाते हैं। हम उन लोगों को इस्तेमाल न हो इसलिए देते हैं, हाँ, मगर उसके लिए है ना एक व्यक्ति ने अपने NCL नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, उन्होंने रिसर्च किया, 3 साल तक काम किया। हमारे सिंह साहब अभी हाजिर है, उन्होंने ये उदाहरण दिया था, नाम नहीं बताया। तो वो जेंटलमैन ने आए तो कि भाई तुम ना टाइलोफोरा इंडिया ये बताते हो एस्थेमेटिका, वो प्लांट्स कहाँ से लाए। तो प्लांट्स बोले कि ये लोनावाल कह के भाई वो मुझे दिखाओ, तो टाइलोफोरा इंडिका नहीं था, वो टाइलोफोरा दालसेली था। तो ये RS राव उन्होंने वो सुना, अरे इट इज फेटल टू ह्यूमन बीइंग्स, हाँ, तो वो तो मनुष्य को मार देता है, इसलिए प्रॉपर आइडेंटिटी वो BSI में होती है सर। तो ये है ना BSI मेन है जो योग्य उसका, जैसे हम बोलते हैं ना गधा और घोड़ा कितना फर्क है, तो प्रॉपर आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो ये है ना BSI का मेन। फिर उन्होंने बताया कि उसका रोका नहीं, तो कभी तुम ये डिग्री ले लो, उसका वाइवा के लिए बुलाया, और है ना उसको प्रसिद्ध मत करो, नहीं तो वो प्लांट है ना वो कोई लेगा, कलेक्ट करेगा, उसका यूज करेगा तो मर जाएगा। तो RS राव ने भी जो एक सेमिनार में बताया मैंने कि भाई ये तो फेटल टू ह्यूमन बीइंग्स, मर जाता है आदमी, जेरी है प्लांट, दालचीनी, उस पर उसने काम किया। तो प्रॉपर आइडेंटिटी है ना, कोई कहीं भी आप करे या तो हमारा BSI माध्यम है उसमें से करवाइए। ये है ना, जैसे मुझे एक संयोग भी मिला था जामनगर में MP स्टूडेंट्स के सामने, मेरा एक किताब था, उन्होंने हरीसा साहब, प्रोफेसर हरीसा, तो मेरे पास गुजरात का था, हमारा गुरुजी ने दिया हुआ फ्लोरा ऑफ गुजरात, उसकी 2 प्रति मेरे पास थी, तो उनके पास नहीं थी, तो वो बिकेम वेरी हैप्पी। तो मैंने दे दिया कि भाई आप लाइब्रेरी में रखिए, तो उनको कुछ बहुत सारा काम लगा। तो कुछ भी हमारे पास जो है वो दूसरों को देना, वो भी गर्जेज का है, वो जरूरी है। तो ये सब प्लांट्स को बचाना, प्रचार प्रसार करना, ऐसे उपयोगी वनस्पतियों का, वो भी जरूरी है। तो मेरा अभी कंजर्वेशन के बारे में भी थोड़ा बहुत मैं बोला हूँ, तो आपको कुछ भी प्रश्नोत्तरी है वो कीजिए, क्योंकि वो भी जरूरी है। प्रश्नोत्तरी जो भी प्रश्न करेंगे
अभी बहुत बहुत धन्यवाद कोठारी साहब, आपने मैंगुरु के बारे में बढ़िया जानकारी दी हमें, और इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और मेडिसिनल वैल्यू के बारे में भी आपने बताया। अब दुरुस्त साहब, किसी को प्रश्न है तो पूछिए। सर मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूँ प्लीज? आप पूछिए मैडम। कोठारी सर, आपने ये सारे प्लांट्स की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया, तो जी। वो वहाँ के लोकल पीपल का बताया हुआ था या लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटेड है? ऐसा है मैडम कि लोकल पीपल भी बताते हैं, उसका नाम बताते हैं लोग। हाँ, जैसे जी तिवारा है, कंडरी है, हाँ कांडेल है, ये सब लोकल हाँ नाम है, सुन लीजिए मैडम। हाँ, जी जी है ना, लिटरेचर भी है। और जो कुछ प्लांट्स जी है लेबोरेटरी में जाके उनका ये बराबर है कि नहीं, जैसे अभी मैंने टाइलोफोरा का उदाहरण दिया, तो वैसे कंफर्म करते हैं कि जो प्लांट बताया वो सही है कि नहीं, और लिटरेचर में हाँ सभी मिलता है, तो उनमें से करके फिर है ना प्रसिद्ध करते हैं, विदाउट कंफर्मिंग द आइडेंटिटी। हाँ, एंड लिटरेचर वी डोंट पब्लिश। नॉट ओनली द आइडेंटिटी सर, वो प्लांट का ये पार्ट इस तरह से इस डिसीज के ऊपर क्योर करता है, तो उस बात का एक्सपेरिमेंटल वो हुआ है। काफी हाँ लोग यूज किया है, जैसे है ना, मैं बताऊं आपको, डाइलोफेरेन, ये अभी एक उदाहरण दिया एस्टेमेटी का, तो वो जी 7 दिन उसको दबा मिट जाता है हाँ डाइलोफेरेन। हम हमारे बीएसआई में ऐसे उपयोगी वनस्पति उगाते हैं, बीएसआई कैंपस में, और लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, और ये सिद्ध किया हुआ है वही दो लोगों ने भी। तो ऐसे एक अच्छा उदाहरण, कई प्लांट्स है। ओके नमस्कार कोठारी साहब। कोठारी साहब नमस्कार। नमस्कार। सर आपने वो जो बताया ना टाइलोफोरा अस्थमेटिका, उसी का एक थीसिस बनाया हुआ 2015 का मेरा है, और वो थीसिस 300 पेज का है, और इंडिया में से 3 स्टेट में से कलेक्ट करके उसका कंपैरेटिव किया था, और उसी का HPTLC करके जो उसका प्रधान रस है उसी को आइसोलेट करके प्योर फॉर्म बना के फिर एनालिसिस किया और टेस्ट किया। दूसरा वो अनुरस बोलते हैं, जैसे कि हम कोई इसका लीफ खाते हैं तो पहले वो जो टेस्ट आते हैं उसको प्रधान रस बोलते हैं, और थोड़ी देर के बाद जो बोलते हैं उसको अनुरस बोलते हैं। तो अनुरस को भी आइसोलेट किया और उसका HPTLC करके ऐसे MD का एक थीसिस 2015 में मेरा बनाया हुआ है। वो आवाज नहीं आ रहा सर। अब आप But what बोलिए is your सर। inference? What is your conclusion? कंक्लूजन Is it useful or not? वो यूज करना ही चाहिए, वो क्लिनिकल ट्रायल किया हुआ है और उसी का फार्मास्यूटिकल भी एनालिसिस किया हुआ है। तो Good, very good. किया थायरोक्सिन उसमें कितना परसेंटेज कौन से स्टेट में है और सीजन वाइज उसमें क्या फर्क आता है, ऐसे वो एक थीसिस बनाया हुआ है। और मैं 1985 टू फार्मास्यूटिकल जामनगर में पीजी सर्विस किया। In that तो मेरा environment also, any